सभी को कोरोना नमस्कार। वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास वंस अगेन विद मी विजय कुमार, लेक्चर इन बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबो, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी के बारे में। व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, we have discussed it. Today, now as the various branches are known to you, I am going to discuss with you the 10+1 biology syllabus. It is here on your screen now. The syllabus of the biology 10+1 have the 5 units in total. Total 5 units are there. The unit 1 is the diversity in the living world. It is the unit which is concerned with taxonomy, as we have discussed in the earlier class, one of the branch. Second is the unit 2, structural organization in plants and animals. It is the unit number 2 and it is concerned with the morphology of the plants and animals. Then unit number 3, the cell, as I have discussed with you the cell biology last time. Cell, the smallest structural and functional unit of life. The various aspects of the cell will be studied in the third unit, cell structure and function. Fourth unit is plant physiology. As we have discussed, physiology is the field of, it is the branch of the biology which deal with the study of functioning of the living organism body. So, in the fourth unit we will discuss the plant physiology, the various phenomena, how they occur, and here the animal physiology after that in the fifth unit. We will discuss one by one. Then the paper plan marking scheme we will discuss with you. Now here, this is the unit number 1. It have 4 chapters. पहले बच्चों में पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है. Which is concerned with the taxonomy and the name of the unit is diversity in the living world. The chapter number 1 is the living world. हम जानेंगे कि living organism क्या होते हैं. What are the different characteristics? How they are named. Okay. In the second chapter we have the biological classification. What are the different system of classification of organism? Living organism are there. How they can be classified? We will study about this, all this in this chapter. Then chapter number 3, the plant kingdom. We will study in detail about the plants. There are different kind of plant, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. पढ़ेंगे हम, आपको पता चलेगा. Then in animal kingdom, since the time of evolution, जब से विकास हुआ है तब से कौन कौन से एनिमल्स आए हैं, इनके बारे में हमें पता चलेगा. किनका ओरिजिन हुआ है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल. Then the second unit, it have 3 chapters. The name of the unit is structural organization in plants and animals. As I have told you, it is the unit which is concerned with morphology of the plants and animals. The 3 chapters are chapter number 5. It is morphology of flowering plant, the angiosperms. The most dominant plant on this earth, they are angiosperms, flowering plant. हम इनके बारे में देखेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे. आपको याद होगा कल मैंने आपके साथ मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? हम शेप, आकार, बनावट, शेप एंड साइज को देख के पता लगाते हैं. और देयर आर सर्टेन रूल, देयर आर सर्टेन पैटर्न, वो हम इन डिटेल स्टडी करेंगे बेटा. देन द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 6, विच इज एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने एनाटॉमी को पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में पर्टिकुलरली हम देखेंगे. देन वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है एनिमल्स में आप स्टडी करेंगे इन द 7th चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर with this unit. These are the chapters. Then unit number 3, which is the having the 3 chapters and the unit name is cell structure and function. Then chapter number 8 is there, which is very important, the cell, the unit of life. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 9 में बेटा हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स. मैं आपको बता दूं, we all are made up of molecules, atoms, then molecules, then biomolecules. These biomolecules, they will join to form the cell. Cell will form tissue, tissue will form organ, organ will form organ system, and the different organ system, when they join together,
they will make the living organism or life. The living organism are formed there. It is there. कौन कौन से बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर नंबर 9 एंड इन द चैप्टर नंबर 10 वी विल डिस्कस द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में. उसके बारे में हम काफी डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे. दिस इज अबाउट द थर्ड यूनिट. नाउ द फोर्थ यूनिट इज देयर. इट हैव द 5 चैप्टर्स एंड द यूनिट नेम इज प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. हाउ द वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट अपवर्ड अप टू द लीव्स. एवरी लीफ, एवरी सेल ऑफ द लीफ, from the soil to the root and then upward. How the minerals they will move. So this is the transport in plants. In this chapter we will study in the chapter number 11. In chapter number 12 we will study mineral nutrition. जो मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट्स में मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है और भी सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, रूट्स के द्वारा. ये सारी कॉन्सेप्ट कैसे वो करते हैं, कौन से फिनोमिना है, कौन से मिनरल्स प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब की चर्चा आपके साथ चैप्टर नंबर 12 में किया जाएगा. In chapter number 13, we will discuss the photosynthesis in higher plant, the very important aspect. Prakash संश्लेषण, photosynthesis. How the plants they prepare their own food. We will study in this chapter, my dear friends. This unit have the 4th chapter as respiration in plants. हमें दिखाई नहीं देता है, but there is a regular exchange of gases. Plants will take the CO2 and they will emit or evolve the O2, oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 देते हैं. दिखता नहीं है लेकिन होता है. ये रेस्पिरेशन कैसे होती है, we will study them in detail in this chapter. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और सेलुलर लेवल पे कैसे आपका रेस्पिरेशन होगा, सेल रेस्पिरेशन को भी हम इसमें स्टडी करेंगे. इन चैप्टर नंबर 15 we will study about the plant growth and development. हम देखते हैं, हमने छोटा सा पौधा लगाया, हमने सीड लगाया, वो छोटा सा प्लांट बना, प्लांटलेट बना, फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, देखते देखते बहुत बड़ा हो जाता है. हाउ दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occur in plants we will study in this 4th unit in the chapter number 15. Then the very important unit is there, the unit number 5. 5th unit having the 7th chapter, my dear friends. The unit name is animal physiology and chapter number 16 is the first chapter of this unit and it is having digestion and absorption. Digestion and absorption. It is the unit which is concerned with you and me because human beings are taken as the example or specimen organism of this unit. हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, हम कैसे भोजन को पचाते हैं और कैसे हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे ब्लड में वो चला जाता है, हर एक सेल तक पहुंचता है. We will study in the chapter number 16. Then chapter number 17 is there. It is something about the breathing and exchange of gases. A continuous process. हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है लेकिन फिर भी सांस आती है. देख लीजिए, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको अभी तक ध्यान ही नहीं था कि हमें सांस भी लेना है, लेकिन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. हाउ दिस इज अकरिंग वी विल स्टडी हियर इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 17. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, 5th unit, the animal physiology, is chapter number 18. It is concerned with the body fluids and the circulation. Body fluids, ब्लड, प्लाज्मा एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत सुना होगा. हम डिटेल में करेंगे आपके साथ. हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ऑल द कॉन्सेप्ट आर देयर, माय डियर फ्रेंड्स. वी विल स्टडी इन डिटेल विद यू इन दिस चैप्टर नंबर 18. इन चैप्टर नंबर 19 वी विल डिस्कस द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. देखिए, ऑल द प्रोसेसिंग आर गोइंग ऑन, दे आर यूजिंग द मटेरियल्स, व्हाट दे विल फॉर्म द बाई प्रोडक्ट्स, द बेस्ट मटेरियल. How these waste they will eliminate from the body as if they remain in the body. अगर ये कहीं शरीर में रुक गए ना वेस्ट तो they become toxic, ये जहरीले हो जाते हैं. They must be sent out, they must be excreted. इनका उत्सर्जन जो है वो बहुत जरूरी है. In this chapter we will study about the excretory product and their elimination with the excretory system in human beings. The very important chapter. Chapter number 20, locomotion and movement. How we will move, how it is possible that we can move. It's with the help of our bones and the muscles. We will study about this. Locomotion and movement in detail is studied in the chapter number 20. Then this unit, 5th unit, have the animal physiology, have the chapter number 21.
एज द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे दिमाग नियंत्रित होता है न्यूरल लेवल पे, मानसिक नियंत्रण कैसे होता है और कैसे समन्वय होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ हिला रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे जो फेनेटिकल पार्ट्स हैं, जो फोनेटिक्स हैं, जो मेरे उच्चारण स्थान है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उन्हें कहां से मैसेज आ रहा है। इसी टाइम हार्ट भी वर्क कर रहा है, इसी टाइम डाइजेशन भी हो रहा है, इसी टाइम एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सर्कुलेशन भी हो रहा है। ऑल दिस फिनोमेना दे आर कोऑर्डिनेटिंग लाइक ऑर्केस्ट्रा। एक ऑर्केस्ट्रा में जैसे सारा बैंड बजता है वैसे ये काम करते हैं। हाउ इट इज अकरिंग? वन इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, and second one is, we will study this particularly in the chapter number 21, and the second control is the chemical coordination and integration. Here we will discuss about the hormones. Hormones होते हैं शरीर में, आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, वहां से कितने ज्यादा हार्मोन्स आते हैं। ओके, फिर आपने थायरॉक्सिन के थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन आता है। ऑल दिस विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स। So this is a preview of the syllabi of 10+1 class. Syllabus तो देख लिया। Now we should know, because we will get the examination after the syllabus completion. आपकी एग्जामिनेशन होगी तो कैसे कैसे कितने नंबर का किस यूनिट का वेटेज है, हमें कितना वेटेज कहां पे देना है, वो हम देख के करेंगे। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इट इज द यूनिट नंबर 1, इट इज टैक्सोनॉमिक यूनिट। इट हैव द 5 मार्क्स, 5 नंबर का आएगा आपको। In the second unit you have the 10 marks. मैं एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूं particularly. In the unit number 3, 13 marks. The different boards have a different plan. You will go to these on the site of the various boards. Then unit number 4, it is having the value of 16 marks. Very important unit. Equally equivalent unit is the unit number 5, which is the human physiology. Unit number 4 is the plant physiology. Unit number 5 is the human physiology, my dear friends. तो ये वेटेज के साथ और आपका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। एंड आई विल मेक इट एंश्योर दैट यू विल गेट 60 आउट ऑफ 60 माय डियर फ्रेंड्स आफ्टर गेटिंग दीज बायोलॉजी क्लासेस, हिमाचल फ्री बायोलॉजी क्लासेस विद विजय कुमार कौंडल। इट्स माय कमिटमेंट विद यू। देन सी हियर कैरेक्टर। देखिए, आप किसी भी साइंस को पढ़ रहे हैं, यू मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टर्स। व्हाट आर कैरेक्टर्स द बायोलॉजिस्ट है? फिजिक्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री की अपनी, मैं आपको बायोलॉजी की बता रहा हूं। You must be, the characteristic of a biologist he must have. The first one is disbelief in teleology. कुछ अवधारणाओं को मानते हैं कुछ लोग, टेलियोलॉजी को। कुछ अवधारणाओं को जो मानते हैं उनसे आपको रीड ऑफ करना है, आपको छोड़नी है वो अवधारणा। टेलियोलॉजी को आपको नहीं प्रोसीड करना है। टेलियोलॉजी इज द बिलीफ इन सम I can say misconceptions. तो ये मिसकॉन्सेप्शन आपको नहीं माननी है। डिसबिलीफ इन सुपरस्टिशंस, कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, वो भी आपको नहीं रहना है। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट यू आर गेटिंग रिड ऑफ द सुपरस्टिशंस आल्सो। देन यू मस्ट बी क्यूरियस, आप में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। यू मस्ट बी क्यूरियस, यू मस्ट बी अलर्ट, आप अलर्ट होने चाहिए, आप सजग होने चाहिए। जो फिनोमिना अकरिंग देयर, आप उनको नेचर से ऑब्जर्व कर पाए। ऑब्जर्वेशन क्वालिटी मस्ट बी वेरी गुड। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। इफ यू हैव सेट एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने से पहले ही आप उस एक्सपेरिमेंट को क्या करें, स्पॉइल कर दें। तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए। यू मस्ट हैव द पेशेंस माय डियर फ्रेंड्स। एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, फ्रीडम फ्रॉम बायस मस्ट बी देयर। आप में ये नेचर नहीं होना चाहिए कि आप सिलेक्ट करें चीजों को अपने प्रेफरेंस के अनुसार। बाइसनेस आप में नहीं होनी चाहिए। If the result, we think, if we are doing some experiment, the result must be in accordance with us. हमारे अनुसार उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं करना है। If results are not according to us, then we have to consider that results. It led to the newer discoveries in the biology field, and you are going to be the next biologist of this particular India and the world, my dear friends. Let's see now. What is there in the scientific methodology? देखिए कैसे कार्य हुआ है, ये कैसे रिसर्च हुई है, कैसे आपकी बुक्स में आई है, उसका थोड़ा सा प्रीव्यू आपको देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, जब कभी भी सबसे पहले तो क्या होता है, मैंने बोला आपको कि यू मस्ट बी हैविंग द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ, यू मस्ट बी द कीन ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिनास होती है। कोई आपके इर्द गिर्द, आपने पढ़ा होगा न्यूटन के बारे में कि
एप्पल गिरा था, उन्होंने उसे नोटिस किया था और वहीं से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया था। अगर न्यूटन शायद उस बात को वो अलर्ट नहीं होते, वो कीन ऑब्जर्वर नहीं होते, तो हो सकता था आज तक हम ग्रेविटेशन के बारे में ना जानते। तो देयर मस्ट बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमेना। तो सबसे पहले तो फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या हो रहा है। देखिए, व्हेन यू ऑब्जर्व सर्टेन फिनोमेना, देयर मस्ट बी सर्टेन, यू विल फील दिस इज द प्रॉब्लम, यू फाइंड आउट कि व्हाट टू डू। हमें ये काम, हमें लगता है कि ये कैसे हो रहा है, वो आपका कॉन्सेप्ट है जिसपे आपने काम करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज दिस सेकंड वन स्टेप। देन थर्ड इज द कंसल्टिंग लिटरेचर। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट है, उसके पास उसके ऊपर पहले ही काम हो चुका है, तो इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। वो तो लिटरेचर में पड़ा है, तो वी शुड नॉट डू वर्क, वी शुड गो फॉर द लिटरेचर। न्यूअर डिस्कवरीज, न्यूअर कॉन्सेप्ट विल बी देयर इफ अर्लियर वर्क विल बी नॉट ऑन दिस। अगर उस पर फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं बना है, काम हुआ है लेकिन फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं बना है, तो भी आप काम कीजिए। तो वो किया जाता है, लिटरेचर कंसल्ट किया जाता है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आंसर उसके लिए आते ही हैं। ऑल दीज आंसर्स, दीज आर गेस्ड आंसर। गैस आपने अनुमानित किया है। ऑल द गेस्ड आंसर फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, जो आपके पास प्रॉब्लम थी, दैट विल बी मेक, दे विल मेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बन जाती है उनके, जितने भी आंसर आपके पॉसिबल जो आपको लगते हैं, वो हाइपोथेसिस बना देते हैं। फिर क्या किया जाता है? टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन इज डन। हम उस हाइपोथेसिस के ऊपर जितने आंसर हैं, हमें उन आंसर में से एक आंसर ऐसा लगता है कि ये जो आंसर है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉसिबल है, हम उस आंसर के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू करते हैं। दैट पर्टिकुलर आंसर इज कॉल्ड वर्किंग हाइपोथेसिस। उसके साथ आपने काम करना शुरू किया, दैट वर्किंग हाइपोथेसिस के साथ आप टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। इफ दैट वर्किंग हाइपोथेसिस प्रूव्ड ट्रू, then this will be called the theory, and there will be a theory formation. Theories are liable to change, याद रखिएगा, liable to change। थ्योरी बदली जा सकती है और बदली जा सकती है, समय के साथ वो बदल जाती है। लंबे समय तक, हमने अभी तक कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे, लंबे समय तक जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, and theory will find correct in every kind of the condition on this earth, then this will make the law. So there is a difference in the hypothesis, theory and law, as I have told you. Law is universally accepted statement. Law is universally accepted phenomena. Force of gravitation is everywhere on this earth. So this is the law of gravitation, my dear friends. So these are the steps of the scientific methodology: observation of phenomena, identification of the problem, consulting literature, making hypothesis, testing and experimentation with working hypothesis, theory formation, and the law establishment, my dear friends. Then see, there are different scopes in the biology. हमें पता तो होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं, हम करेंगे क्या, हम बनेंगे क्या। क्या हम बायोलॉजी ऐसी तो नहीं पढ़े जा रहे हैं? No, it is a field. I am telling you, it is a field with them. It is a versatile field. It is the field with the maximum scope of jobs and career. One is the disease and drugs. आजकल आप देख रहे हैं बच्चों, कोविड लगा हुआ है, COVID-19 is there, कोरोना चला है, कोरोना इफेक्ट इज देयर, हम लॉकडाउन में हैं। Who is working? Pharmaceutical industries. 30 companies of India, the leading companies of India. Oxford University, American companies, they are working for the vaccine. Who is doing this? You and me, the people like us, the biologists, they are doing this work in the disease and drugs, my dear friends. And the second is they are solving problems. You know, epidemic is there. जो मैंने बोला, ये सब रिलेटेड हैं। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हैं। आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के द्वारा। देन पब्लिक हेल्थ, ये सारा काम जितना आजकल हो रहा है, ये पब्लिक हेल्थ का है। ये नागरिक स्वास्थ्य का कार्य जो करने वाले लोग होते हैं, ये बायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है इन द वेरियस एजेंसीज। देन डेली यूज आर्टिकल्स, चीज, कर्ड, देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर देयर इन द डेयरी इंडस्ट्रीज, इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज, and so many others. Biology is involved everywhere, my dear friends. Biotechnology is the one of the branch which is involved in all this. Then to know ourselves. देखिए, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें अपना तो पता हो, तो अगर अपने आप को जानना है तो this is the only science we have to study, my dear friends. Then biodiversity protection. देखिए, हर एक जीव का इस धरती पर अपना एक महत्व है। चिंटी से लेके हाथी तक सबका अपना अपना महत्व है। सबको बनाए रखना है, सबको संरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है।
कैसे कंजर्वेशन करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये काम किसका है? बायोलॉजिस्ट का है, आपका है। देन टू मेंटेन एनवायरमेंट, इस वातावरण की बात कौन करता है? वातावरण के संरक्षण की बात कौन करता है? हु विल टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ, हु विल टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट? कौन है वो? आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो बायोलॉजिस्ट लोग हैं, नो वन एल्स अस। देन देयर इज अ ग्रेट कैरियर इन द प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज, साइंटिस्ट। और मैं बता दूं, जैसा मैं बोल रहा हूं, 25% प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड they are made and only made for the biologist, and the number will increase in the future. It may become above the 50%. जो आज की कंडीशन है, ऐसे एपिडेमिक्स तो किसी ने देखे ही नहीं थे। अगर एपिडेमिक में सबसे बड़ा रोल किसी ने अपना अदा किया है तो वो आप और हम बायोलॉजिस्ट हैं। My dear friends, this is something about the syllabi, career orientation, scientific methodology, marking behavior of the or marking scheme of the paper. Thanks a lot to listen me very carefully. This is the end of the today's session. Thank you very much, my dear friends, and meet you in the next class with the start of our topics. We will start with the first unit. What? For the time being, we will take the scenario for cell. What is cell? First of all, we will study the cell, then we get to know all about the taxonomy. A little concept about the cell we will discuss in the next class. Then we will move with the first chapter of your syllabi. It is the taxonomic unit, the living world. Thanks a lot. सभी को कोरोना नमस्कार। अगली क्लास में मिलेंगे। शब्बा खैर।